Hi guys, so we'll start with lesson 7, the business environment. Now, first of all, we have to understand what do you mean by the term environment. Environment basically means the surroundings. Now, a business always operates in an environment that's called as a business environment. For example, if I am starting a business of, let's say, shoes. Now tell me one thing, do I have to do an assessment of where the business will be? Will my strategy change if I am in the village or if I am in an urban area? Will my strategy change? The type of shoes, the quality, the footwear type, will everything change? Yes. So a business always operates in an environment and it's important to assess that environment, study that environment, okay? So first two important definitions they can ask you, what do you mean by who gave the definition? So Keith Davis, he said that the business environment is the aggregate of all the conditions and events that surrounds a business. Okay. Even Andrews, he said that the environment of a company as the pattern of all external influences that affects the life and development of the business. Let's see. कौन से factors surround करते हैं businesses को? We'll see. ये just read लिख सकते हो. A very important part, the types of environment that a business functions in. So there is a small little theory. It's called as the pestle analysis और पेस्ट एनालिसिस. ठीक है, तो पेस्ट कौन सा हो गया? बिजनेस के सराउंडिंग में क्या क्या चीजें तुम असेस करोगे. सबसे पहले तुम पॉलिटिकल सिनेरियो देखोगे. टेल मी, वुड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन सीरिया? वुड यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन सीरिया? नो. ईरान? नो, बिकॉज व्हाई? द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज नॉट गुड. तो जब भी हम लोग एनवायरनमेंट देख रहे हैं तो हम लोग ये सारे फैक्टर्स चेक करते हैं. सेकेंडली, लीगल फैक्टर्स. वी विल सी द लॉज ऑफ द कंट्री एंड हाउ इजी इट इज टू स्टार्ट द बिजनेस. दैट असेसमेंट इज डन. यू चेक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. विच इकोनॉमी इज गुड, वेदर द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग और द Bangladesh economy is going, because it's a very close competitor to us. The social factors you will see. Social factors as in what is the societal beliefs and the people's preferences. For example, if you are selling clothes, textile, it matters if you are going in Saudi or you are selling clothes in Thailand. दोनों का स्ट्रैटेजी अलग होगी कि नहीं? द टाइप ऑफ क्लोथ्स विल बी डिफरेंट. यस, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी द सोसाइटी की सोसाइटी के बिलीव्स कैसे हैं. नेक्स्ट, द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. सो यू विल सी वेदर टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, व्हाट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट है कि नहीं उस कंट्री के अंदर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट. A business is surrounded by all these things and it is very important to assess these factors. Next, एक छोटे से फीचर्स दिए हैं एनवायरनमेंट के बारे में. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोग ने देखा था, लाइक द पॉलिटिकल सिनेरियो, द सोसाइटीज बिलीफ्स, वो सब मैटर करता है तुम्हारे एनवायरनमेंट को. Second, specific and general factors. Now let's understand what are the specifics and general factors. First, general factors are non-human factors actually, like social, legal, technological, political factors को लोग क्या बोल रहा है? जो non-human factors है उसको general factors बुला रहा है, और जो human factors है उसको हम लोग specific factors बुला रहे हैं. Like this is human factors and this is non-human factors that affect a business. What is the human factors? Like the investors, the customer type, the competitors, the suppliers. तो ये सब human factors है, ये सब स्टडी करना पड़ेगा.
Next is interrelation. Environment and business is dependent on each other, and businesses are dependent on each other. If there is no environment, there is no business, and if there is no business, obviously the society will find it very difficult to survive. Uncertainty. कोई भी बिजनेस के अंदर तुम देखोगे अनसर्टेनिटी होती है. नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, बट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रिडिक्शन कैन बी डन, और उसी बेसिस पे बिजनेसेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द फैशन, द टेक्नोलॉजी, वो सब हम लोग थोड़ा बहुत रीजनेबली प्रिडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट्स अ डायनामिक फैक्टर. बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ डायनामिक मीन्स बिग macro event, and it is highly flexible and keeps on changing. The environment doesn't just remain static, it keeps changing. Therefore the businesses have to keep continuously monitoring and scanning its environment to make its strategy. It's a little complex, not that simple. Lot of research and development needs to be done to assess what will be the future preferences and the scope. Next is relativity. The impact of a business environment may differ from company to company. Tell me, in the pandemic businesses कम हुए या बढ़े हैं? Businesses कम हुए. अब तुम देखोगे ये क्यों relative बोल रहे, क्योंकि अगर environment change हुआ, the environment changed, everything around us changed, so कोई businesses नीचे गए and कोई businesses बढ़ गए. So can I say it affects the businesses in a relative manner? Some businesses must have gone down, like hotel industry, tourism has been badly affected, whereas software companies, technology, your pharmaceutical businesses, your healthcare, ये सारे businesses क्या हो गए, बढ़ गए. So relative है, environment change होता है तो कोई businesses को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर सकता है. लेट्स सी. तो ये सारे फैक्टर्स है जो बिजनेस को कर रहे हैं. सो वी कॉल इट एज पेस्टिल एनालिसिस. इट्स पॉलिटिकल, एनवायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की चेकिंग करते हैं, फिर बाद में बिजनेस करते हैं. आगे देखते हैं. ईच वन के ऊपर कवर किया है वो लोग ने. एनी बिजनेस एनवायरमेंट, अगर हम लोग कभी भी देख रहे कि बिजनेस करना है हमें, तो हम लोग उसका पहले एनवायरनमेंट चेक करते हैं. एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग्स. हाउ इज द सराउंडिंग्स. ओके, नाउ यू टेल मी कि जो सराउंडिंग्स है या जो बिजनेस के आजू बाजू होता है, वी एज अ कंट्री we should have businesses ease of doing business, or we should try making the surroundings very difficult to conduct business. It should be easy or tough? It should be ease. So it should be easy. So there has to be ease in doing business. Political scenario, your different factors, we should try to make it very favorable to businesses. तो क्या होता है यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक सर्टेन एनालिसिस करती है. वर्ल्ड बैंक सारी कंट्रीज को स्टडी करती है और बताती है कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, और एक उसका फैक्टर होता है विच इज कॉल्ड एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रिपोर्ट बनता है या इंडेक्स बनता है, और वो रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कौन सी कंट्री में बिजनेस करना आसान है और कौन सी कंट्री में टफ है. नाउ लेट्स सी कि इंडिया का रैंकिंग क्या है यहाँ पे. सो इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग क्या है, विच वॉज मेड बाय वर्ल्ड बैंक. सो इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ जंप ऑफ 23 पोजिशन against its ranking of 100 in 2017 to now placed at 77th rank among 190 countries. So in
2017, what was the ease of doing business ranking of India? कितना है? Can you read and tell me हम लोग का रैंक क्या था? What was our rank? Our rank was 100. टोटल कितनी कंट्रीज का असेसमेंट होता है? 190 कंट्रीज में से हम लोग 100th रैंक आ रहा है. तो क्या अच्छा रेट है? क्या अच्छा रैंकिंग आया हम लोग का? नो, नॉट अ वेरी गुड. बिकॉज इंडिया में तुम देखोगे बिजनेस ओनर्स बोलते इतने लॉ है, इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना चेंज होता है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है. तो गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स निकाले, हम लोग देखेंगे कौन से. उससे क्या हो गया, हमारा रैंकिंग 2019 के अंदर इट हैज जम्प्ड टू 23 स्टेप्स लीप. और अभी हमारा रैंकिंग कितना है? इन 2019 फ्रॉम 100 आवर रैंक हैज नाउ बिकम 77th from 190 countries. So can you see that there is a good leap? We have improved or no? Yes, so we have improved. अभी तो कौन सा इस साल चल रहा है? 2020 की रैंकिंग देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज द मोस्ट रीसेंट. तो हम लोग ने इतना अच्छा तो लीप किया. नाउ लेट्स गो टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एंड सी from 190 countries what is our latest ranking. India का रैंक 63rd in ease of doing business in 2020. So have we further improved? Yes, sir. Yes, तो further improvement आया हम लोग का. So in 2020 we have become 63rd out of 190 countries. Sir, मैं तो it's a very good thing for India that we are improving. Now I'll tell you something about World Bank. World Bank का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? ये उनका पूरा रिपोर्ट है, कौन सी कंट्रीज है और ये सो ऑन. फर्स्टली who makes the ease of doing business रिपोर्ट कौन बनाता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है. अब वर्ल्ड बैंक स्टडी करता है, टोटल कितनी कंट्रीज को स्टडी करता है? 190 कंट्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. अब 190 कंट्रीज को 10 पैरामीटर्स पे जज होते हैं, पे जज किया जाता है. अब ये कौन से 10 पैरामीटर्स है, सब पे एक एक स्टडी करते हैं कि स्टार्ट करना बिजनेस कितना आसान है, कंस्ट्रक्शन लाइन में कितना है. वो 10 पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं और फिर ओवरऑल रैंकिंग बताते हैं. सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू द रिपोर्ट. यू नो विच इज द बेस्ट कंट्री? वर्ल्ड बैंक का नंबर 1 पे कौन आया है? न्यूजीलैंड. सो नंबर 1 इज न्यूजीलैंड. देन यू हैव सेकेंड इज सिंगापुर. ऐसे करते करते थर्ड इज हांगकांग, देन डेनमार्क, देन यूनाइटेड स्टेट्स 6th. ऐसे करते करते हम लोग का नंबर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे चलते जा रहा है. वी आर ऑन विच नंबर? 63rd. ये लेटेस्ट वाला है, इसलिए वी आर ऑन 63rd. अब कौन से फैक्टर्स पे चेक करते ना, ये यहाँ पे दिए हुए हैं. सबसे पहले वो लोग बताते कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ओवरऑल रैंकिंग इधर आता है, और कौन से
एस्पेक्ट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग बिजनेस को काउंट करते हैं, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स, सबका एक एक करके ये 10 पैरामीटर्स होते हैं. लेट्स सी विच आर. देन नेक्स्ट इज गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कितना आसान है इलेक्ट्रिसिटी आना, नहीं तो काम कर रहे लाइट चली गई. देन गेटिंग क्रेडिट. क्रेडिट मतलब क्या, लोन मिलना कितना आसान है बिजनेस में. प्रोटेक्टिंग ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट. पेइंग टैक्सेस. इंडिया में टैक्सेस कैसे लगते हैं, इजी है या नहीं. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स मतलब क्या, इंडिया के बाउंड्री के बाहर बिजनेस करना. सो आई कैन कॉल इट एज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना कितना आसान है. लास्ट में एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. एक है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. नाउ व्हाट डज एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन. अगर किसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुमको कितने टाइम में रेजोल्यूशन मिल जाएगा. एंड लास्टली रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी. अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया लाइक अनिल अंबानी, तो कितने टाइम में क्रेडिटर को रिलीफ मिलेगा. तो ये 10 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भेजता है. लेट्स सी फ्रॉम द मॉड्यूल. सो डायरेक्टली कितने टोटल पैरामीटर्स है जिसपे हम लोग जज किए जाते हैं. 10 पैरामीटर्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें से हम लोग ने कितने में इंप्रूव किया है. वी हैव इंप्रूव्ड ऑन 6 आउट ऑफ 10 इंडिकेटर्स. अब ये लोग ने दिए वो कौन से 6 कैटेगरीज है जिधर हम लोग ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग ऊपर आई है. तो वो ये सारी चीजें हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन परमिट्स. तो 2017 में हम लोग का रैंकिंग क्या था कंस्ट्रक्शन परमिट्स के लिए, 181. फिर सीधा कितना हो गया, सीधा अभी 2018 में 52. कितने का इंप्रूवमेंट आया, हम लोग सीधा 121 पॉइंट्स ऊपर चले गए. व्हेन आई टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन परमिट्स मतलब क्या कि अगर तुम्हें बिल्डिंग बनानी है तो तुमको लाइसेंसेस अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो कितने टाइम में मिलता है तुमको. तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है जिसकी वजह से हम लोग का 129 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया. इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉल्ड एज ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स भी इंप्रूव हो गया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे, वो सब इजी हो गया जिसकी वजह से वापस हमारा रैंकिंग 146 रैंक था, जिसकी फिर एंड में हमारा 80 हो गया जिसकी वजह से 66 रैंक्स है. तो ऐसे करते करते हम लोग सब ईच वन का देख रहे, तो हमारा ओवरऑल रैंक कितना था इन 2017. आवर रैंक वाज 100. 2018 में क्या हो गया, 77 पॉइंट जंप कर 77 रैंक हो गया. मतलब इंप्रूवमेंट ऑफ 23 स्टेप्स वी हैव कम अप. समझ में आया ये. नाउ ये यहाँ पे देखेंगे इंडिया, important features about India's performance. World Bank has recognized India as one of the top improvers for the year. In the second consecutive year, India has been recognized as one of the top improvers. India is the first BRICS and South Asian country to be recognized as the top improver in consecutive years. India has recorded as the highest improvement in 2 years. That is 53 positions improvement आ गया. So obviously all of this is really good from India point of view. So we are doing a good job in improving and doing business in India. Okay, now indicators with a little bit of highlights. जो 6 इंडिकेटर्स थे वो लोग ने यहाँ पे दिया. कंस्ट्रक्शन परमिट. तो कंस्ट्रक्शन परमिट्स मतलब क्या कि कितना प्रोसीजर्स रिड्यूस हो गए, टाइम रिड्यूस हो गया, बिल्डिंग क्वालिटी इंप्रूव होने लगी अभी जो बनने लगे हैं, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स का टाइम रिड्यूस हो गया है, द डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर इम्प्रूव फ्रॉम 38 to 73. मतलब हम लोग का डिस्टेंस टू फ्रंटियर मतलब अगर तुम्हें कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है सामान तो पहले 38 की ईज था और अभी ईज बढ़ गया.
73. So all of that is good. Trading across borders. क्या बोला था? ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स मतलब क्या? Import and export. So let's see what has happened here. So changes in time and cost. In 2017 इतने घंटे लगते थे इंपोर्ट करने के लिए, इतना खर्चा होता था इन डॉलर्स, बॉर्डर पे कितने कंप्लायंसेस करते थे, इतना टाइम ज़्यादा था, कॉस्ट इतना ज़्यादा था, डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस करने के लिए इतने आज जाते थे, इतना ये ऐसे करते करते वो पूरा बता रहे वो लोग. इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस के लिए इतना है, बॉर्डर कंप्लायंस के लिए इतना है. एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंस इतना, बॉर्डर दूसरा, कंप्लायंसेस इधर. अब 2018 में मुझे देख के बताओ कि इम्प्रूव हुआ है कि इम्प्रूव नहीं हुआ है. व्हाट इज हैपनिंग टू द टाइम? इट इज रिड्यूसिंग. व्हाट इज हैपनिंग टू द कॉस्ट? इट इज रिड्यूसिंग. व्हाट इज हैपनिंग टू द टोटल टाइम? इट्स रिड्यूसिंग. टोटल कॉस्ट इज रिड्यूसिंग. एवरीवेयर यू सी, आर वी इम्प्रूविंग और नो? मतलब हो क्या रहा है? कॉस्ट कम हो रहा है और टाइम भी कम हो रहा है टू डू इंपोर्ट एक्सपोर्ट. सो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट, ये दिल्ली का था इंफॉर्मेशन, वैसे ही मुंबई का भी है. अगर इंपोर्ट करना है तो मुझे बताओ कि टाइम कम होते जा रहा है कि नहीं? सब जगह टाइम कम होते जा रहा है, खर्चा भी कम होते जा रहा है. Even where you do import and export, so on all the total aspects we are improving, whether it be in Bombay or in Delhi. Clear? Then starting a business, if you want, let's say you all want to start a business, तो procedural जो part था वो reduce हो गया है from 11 to 10, in Delhi from 12 to 10, in Delhi 11 to 10 and in Mumbai 12 to 10. तो ऐसे प्रोसीजरल पॉइंट्स बोल रहे वो लोग. टाइम भी रिड्यूस हो गया है, पैन लेना है, पैन कार्ड लेना है, टैक्स अलॉटमेंट नंबर लेना है, डिन नंबर लेना है. डिन नंबर इज फॉर डायरेक्टर्स को एक अलग से नंबर लेना पड़ता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. इट हैज़ बीन मर्ज्ड विथ स्पाइस फॉर्म फॉर अ सिंगल फॉर्म फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन. सो मार्क करो इसको इम्पॉर्टेंट. I'll tell you what it is. Today, let's say one wants to incorporate a company. Today, someone wants to incorporate a company. Incorporate का मतलब क्या है? Form or another word for incorporate, start a company. ठीक है? तुम लोग को अगर फॉर्म करना है, तुमको पता है कि कंपनी कैसे फॉर्म करते हैं? कि तुम लोग एक कंपनी सेक्रेटरी को एंगेज करोगे. सो इनकॉर्पोरेशन कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी. सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एंड मेनी अदर एंटिटीज. तो हम लोग क्या करते हैं? ICSI ने, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक ही फॉर्म बनाया है फॉर इनकॉर्पोरेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइस फॉर्म. स्पाइस फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन. इट इज कॉल्ड एज सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली. ये पूरे फॉर्म का नाम है. एक ही फॉर्म आता है. यही फॉर्म के अंदर तुम पैन नंबर भी निकाल सकते हो, तुम्हारा टैक्स का भी डिटेल्स निकाल, टैक्स डिडक्शन अलॉटमेंट नंबर. जब हम लोग एम्प्लॉयज़ रखते हैं तो उनका TDS करना पड़ता है, इनकम टैक्स करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग को टैन नंबर लेना पड़ेगा. फिर वैसे ही बहुत सारे फॉर्म्स लेने पड़ते हैं, वो सब स्पाइस के साथ में ही निकाल लेते हैं हम लोग. सो टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड एज स्पाइस फॉर्म. I'll show you from the MCA website how you can incorporate a form. So I am a company secretary, I incorporate companies. So what we do, we go to the, so this is one of the companies that we are incorporated. ये उसका spice form है. So it is
सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये पूरा उसका फॉर्म भरना पड़ता है कि क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायरेक्टर्स कौन कौन हो गया, वो सब उसका फॉर्म फिल करके देना पड़ता है entirely. So I'll show you from the MCA website how we go and we incorporate. तो पहले हम लोग ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के इस पे हैं, वी गो ऑन द MCA सर्विसेज, वहाँ पे दिख रहा है इनकॉर्पोरेशन, सो वी क्लिक ऑन दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी। कौन सा फॉर्म है आई टोल्ड यू फॉर इनकॉर्पोरेशन? स्पाइस। तो ये उसका स्पाइस फॉर्म है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। तो उस पर जाना है, तुम्हें डाउनलोड करना है पूरा, वो लोग प्रोसीजर भी बताते हैं, देन यू कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनी। नाउ कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हो, डोंट यू थिंक यू हैव टू आल्सो सिलेक्ट द नेम? तो गवर्नमेंट ने ये एक रिजर्व्ड यूनिक नेम करके दिया, ये अभी लॉक्ड है, इस पे मेरा पासवर्ड और यूजर नेम डालूंगा तो हम लोग जाके कोई भी कंपनी का जो नाम रखना है हम लोग जाके उसको रिजर्व कर सकते हैं। तो रन ऐप जो दिया है उस इज टू रिजर्व अ यूनिक नेम, देन यू डू द इनकॉर्पोरेशन एंड फिल अप द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नाउ इनकॉर्पोरेशन के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, वील सी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्पाइस फॉर्म तुमको जानना चाहिए फॉर इनकॉर्पोरेशन में सब कुछ ही मिल जाता है, पैन टैन डिन नंबर, एक ही फॉर्म है, सिंगल फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। नो रिक्वायरमेंट फॉर इंस्पेक्शन अंडर रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट इन मुंबई। पहले क्या था, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस लेना पड़ता था, अब वो भी नहीं करना पड़ता है। डिस्टेंस टू फ्रंटियर हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम 75 to 80। एक्सेसिंग क्रेडिट मतलब क्या, तुम्हें क्रेडिटर्स लोन वोन अभी इजीली मिलने लगा है, हम लोग को रैंकिंग इंप्रूव होते जा रही है, सो ऑन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योरमेंट, तो अगर कोई भी स्टेट है उसमें तुमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, सो ऑल ऑफ द प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग इज इम्प्रूव। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग हमारा रैंकिंग, दे आर सेइंग 2014 में 142 था, 2016 में 130 था, 2017 में 100 था, 2018 में 77। सो वी आर कंटिन्यूसली इंप्रूविंग इन ease of doing business. When I see the distance to frontier is also उसका rating improve ही होते जा रही है. That is your import and export. Distance to frontier means import and export is also ranking is improving. Moving forward, ये सारे 8 indicators दिए हैं in which India has improved in the last 4 years. सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट कौन से एरिया में ला रहे हम लोग? कैन यू सी एंड टेल? कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो अभी जो है हम लोग इजीली बोल रहे कि बिल्डर्स को थोड़ा हेल्प दे रहे, सपोर्ट दे रहे, आप लोग आओ बिल्डिंग बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट लेके आए हम लोग ने 4 years में। तो रियल एस्टेट सेक्टर, real estate has drastically improved in licensing and governing, वो सब है, हम लोग लाइसेंस बहुत इजीली देना चालू किया। Then coming to one part which is the ease of doing business index by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade for states। ये किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DPIIT। क्या है उसका फुल फॉर्म? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ओके, दे हैव टेकन सेवरल रिफॉर्म्स to improve the regulatory environment. Now you tell me, let's see if you know who's the commerce minister. अपना कॉमर्स मिनिस्टर कौन है?
Can anyone tell? Who is it? पीयूष गोयल. पीयूष गोयल. ठीक है. नाउ असेसमेंट में वापस ये लोग इंडिकेटर्स रिपीट कर रहे हैं काफी बार. दे आर सेइंग, अब ये एक मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, ये कब आए थे ईयर. द वर्ल्ड बैंक हैज रिलीज द ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट 2019 ऑन अक्टूबर 2018. तो ये एक मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट. इंडिया हैज रैंक 77 among 180 countries assessed by the Doing Business India team, and same thing they are repeating. ये सारे 10 फैक्टर्स है. ओवरऑल रैंक हमारा बता रहे 77. देन सम ऑफ द मेजर इंडिकेटर वाइज रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. तो थोड़ा फैक्ट्स दिए यहाँ पे. स्टार्टिंग अ बिजनेस, अगर तुमको स्टार्ट करना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पहले था, लेट्स से प्राइवेट कंपनी चालू करनी है या पब्लिक कंपनी चालू करनी है. स्टार्टिंग में कितना पैसा होना जरूरी है टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी? व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड? एनीवन नोस? मेक अ गेस. 1 लाख. 1 लाख. एंड टू स्टार्ट अ पब्लिक कंपनी कितना है? 10 लाख. पहले 5 लाख था. ठीक है. अब क्या है, गवर्नमेंट ने ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये भी कम हटा दिया. नाउ यू डोंट नीड टू हैव एनी प्रायर कैपिटल. मैं ऐसे ही प्राइवेट कंपनी चालू कर सकता हूँ, ऐसे ही पब्लिक कंपनी चालू कर सकता हूँ. मेरे पास में ऑलरेडी पहला पैसा होना जरूरी नहीं है. टू स्टार्ट द बिजनेस डू यू रिक्वायर कैपिटल? आंसर इज नो. तुम कंपनी हम बना के दे देंगे, फिर तुमको जैसे बाद में पैसे लाना है, जो करना है वो बाद में करो, चलेगा. सो बाय एन अमेंडमेंट इन 2015. Sir, your voice is breaking. Okay. So in 2015, in Companies Act amendment, the minimum capital required to start a business was removed. So a person now can start a company without any prior requirement of any capital. So it's a good step. So they are saying कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है ताकि बिजनेसेस के लिए इजी हो जाए. सेकंड, एक सिंगल फॉर्म बनाया है कॉल्ड है स्पाइस फॉर्म, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली. स्पाइस का फुल फॉर्म, जिसमें सब कुछ बोला है कि आप डायरेक्टर्स का नंबर भी निकाल सकते हैं, डिन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर वो भी कर सकते हो, पैन नंबर भी निकाल सकते हो. स्पाइस के साथ में एक और फॉर्म है अजाइल करके, जो स्पाइस फॉर्म के साथ में ही फाइल करते हैं. नाउ टेल मी, अगर तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, डोंट यू थिंक तुमको जीएसटी नंबर भी कभी कभार लेना पड़ेगा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉइज का रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा. यस और नो? अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो एम्प्लॉइज का भी एक प्रोविडेंट फंड वो सब बनाने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है. गवर्नमेंट ने एक और फॉर्म दे दिया है जिसका नाम है अजाइल. तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर फाइलिंग फॉर स्पाइस फॉर्म, उसके साथ में तुम अजाइल ही उसका अटैचमेंट में दे सकते हो. तो क्या होगा, तुम्हारा कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जीएसटी नंबर भी निकल जाएगा और तुम्हारा एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड वो सब भी बन जाएगा. तो देखो ये भी मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अब देखो अजाइल का फुल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड कॉल्ड एज अजाइल. ठीक है, ये फॉर्म का नाम है. तो इसमें क्या होता है, जब मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तब स्पाइस भरूंगा और उसके साथ में अजाइल भी भर दूंगा. तो एक ही काम में मेरा सब हो जाएगा. नहीं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करो, उसकी जरूरत ही नहीं है. तो नाउ टेल मी, अगर मैं नाउ यू ऑल शुड नो, इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, कौन से 2 फॉर्म्स भरते हो तुम?
स्पाइस और दूसरा कौन सा है? अजाइल। स्पाइस में तुम कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हो और अजाइल में जीएसटी नंबर निकाल देते हो। तो एक ही टाइम में, वन टाइम में ही सब काम खत्म। ठीक है, तो ये इजी हो गया है। नाम रिजर्व करने के लिए एक रिजर्व यूनिक नेम बनाया हुआ है, रन ऐप। इनकॉर्पोरेशन का फीस जो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना फीस लेती है अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तो कितना ले रही है गवर्नमेंट? 0 पैसे ही नहीं ले रही है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। अगर तुम्हारा कैपिटल अप टू 15 लाख है, तो अगर कंपनी में मैं बताना चाहता हूं कि मेरा कैपिटल इतना ही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, बट कभी कभार लोग ऑब्वियसली धंधा करेंगे तो कैपिटल तो लाएंगे ही। तो अगर मेरा कैपिटल 15 लाख तक है ऑथराइज कैपिटल, तो गवर्नमेंट बोल रहे बहुत ही छोटी कंपनी है, इनके पास है, पैसे ही मत लो, इनकॉर्पोरेशन फीस ही नहीं है। इज 0 इफ कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल इज अप टू 15 lakhs। इफ इट इज बियॉन्ड 50 लाख देन थोड़ा पैसा लेंगे वो लोग। फिर एक बार तुमने अप्लाई कर दिया तो तुमको फिर एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। आगे देखते हैं। देन डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है तुम रीड कर सकते हो उसको, जस्ट रीड। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। नाउ procedure for internal wiring inspection by the electrical inspector have been eliminated। इंस्पेक्शन जो है वायरिंग का वो रिमूव कर दिया है। ये एक पॉइंट है जो आ सकता है। इन दिल्ली सर्विस लाइन चार्ज हैज बीन कैप्ड टू ₹25,000 in electrified areas for low tension loads up to 150। लो टेंशन मतलब वोल्टेज, तो समझते क्या होता है, सर्टेन इलेक्ट्रिफाइड एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग। इलेक्ट्रिफाइड एरिया मतलब कोई विलेजेस होंगे, उसके अंदर वो लोग ने इलेक्ट्रिसिटी कितने पे कैप कर दिया उनका बिल, 25,000 से ज्यादा बिल आ नहीं सकता उनका। ओके, फॉर टेंशन लोड मतलब अगर वो लोग यूज कर रहे हैं अप टू 150 किलोवाट्स। तो सोचो कि दिल्ली में वो बता रहे कि जो लोग 150 किलोवाट्स तक यूज कर रहे हैं वो लोग के लिए मैक्सिमम बिल 25,000 आ सकता है। देन गिविंग क्रेडिट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, पेइंग टैक्सेस। टैक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक लेजिस्लेशन पास किया गवर्नमेंट ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। सो उससे भी बहुत इजी हो गया है। नहीं तो पहले गुड्स के अलग टैक्सेस होते थे, सर्विसेज के अलग टैक्सेस होते थे, अब इसको कंबाइन करके खाली एक ही टैक्स बना दिया है कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इजी हो गया। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल आर डूइंग CS, कैन यू ऑल टेल मी कि कंपनीज के ऊपर कितना टैक्स लगता है? कंपनीज पे कितना टैक्स रेट, इनकम टैक्स कितना लगता है? 25। तो ये जो था दो पार्ट में डिवाइड किया है वो लोग ने। अगर तुम्हारा टर्नओवर इज अप टू 250 करोड़ एंड टर्नओवर इज मोर देन 250 करोड़, तो यहां पे तुम छोटे बिजनेस हो तो तुम्हारा खाली 25% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स। तो जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उस पे गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? 25% इनकम टैक्स। बट अगर तुम बड़ी कंपनी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी, तो तुम्हारे ऊपर 30% का टैक्स ब्रैकेट आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स के लिए भी वो लोग दे रहे हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किया, यू कैन रीड इट वंस। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, मार्क करो इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो गई तो गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन पास किया है कॉल्ड एज IBC कोड 2016। ये क्या होता है, ये एक स्पेशल इंसॉल्वेंसी के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया। वो लोग ने रियलाइज किया कि नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया,
और कौन है? विजय माल्या पैसा लेके भाग गया। और लॉस किसको हो रहा है? बैंक्स को लॉस हो रहा है, जो लोग ने लोन दिया था। और बैंक्स में किसका पैसा रहता है? पब्लिक का। तो बैंक जब बंद हो जाती है, जब ये लोग पैसे लेके भागते हैं, तो पब्लिक को भी लॉस होता है, तुमको और मेरे को। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ताकि बैंक्स अपनी रिकवरी फटाफट कर सके। ओके, सो सेक्शन 42 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड द क्रेडिटर the right to object to the decisions of the liquidator. So certain powers दिए हुए creditors को. In the next levels you will learn much more about it. Implementation of business, just a few points. So implementation of business reforms, again a few points are given, you can read it up. That is it, not that important. Now coming to the sample questions. Firstly, World Bank has released a report, and it was released on 31st October 2018. Next, total कितनी countries है? 190 economies. Assessment of 190 economies over 10 indicators. हम लोग ने देखा था वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. नेक्स्ट, हमारा रैंक कितना था? 77th, एंड वी मेड अ लीप ऑफ 23 पोजीशंस फ्रॉम 100 टू 77, और अभी 66. 60 कितना था? 63 in 2020. आगे देखते हैं. Business environment is an aggregate of all conditions. This definition was given by Keith Davis. Starting of the chapter में ही है. And next, ease of doing business by the DPIIT for states. What is the rank of India with reference to स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस? तो वो एक इंडिकेटर में तुमको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस कितना है, 137. एंड दैट इज इट, वी आर डन विद द चैप्टर.